So I think now everyone is copied. Done? Now see. So everyone just note down once again. So these are the formulas. There are many more formulas, but in your syllabus in class 11, you have very limited things. And these are the properties. Now let me begin with what is differentiation first. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है विथ डेफिनेशन फर्स्ट ओके So here we begin with the definition first. So what is differentiation first of all? See, the rate of change of y, the rate of change of dependent variable let's take a variable y. WRT means with respect to the change in the value of with respect to the change in the value of x, also called independent variable. That is x is called differentiation. Okay, is called differentiation. It is written as dy by dx. So I repeat once again, the rate of change of dependent variable, which is y, with respect to the change in the value of independent variable, which is x, is called differentiation, written as dy by dx. Now, this definition, I'm going to explain this definition with the help of a function. Let's take y equal to fx. In this function y equal to fx, y is a dependent variable. Okay? X is an independent variable. Till now y variable y called dependent, x is called independent. Let us take one example. Let's take y equals to 2x plus 1. If I take y equals to 2x plus 1, you are finding that y is a variable, x is a variable, but the value of y is dependent on this expression. That's why y is called dependent variable. x is independent, मतलब x का वैल्यू किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे y is f of x, so the value of y is dependent on variable x. Let's take x equals to 1. If I take the value of x equals to 1, the value of y you are getting is 1 2 ja 2 plus 1, 3. When I am taking the value of x equals to 2, the value of y I am getting is 2 2 ja 4 plus 1, 5. When I am taking the value of x equals to 3, the value of y I am getting is 3 2 ja 6 plus 1, 7. So we are finding that the value of y is dependent on which variable? X. That's why if you have y equal to fx, which is called an explicit function, this is called an explicit function. Why it is an explicit function? Because here you are finding that y is written in terms of x. y किसके टर्म्स में लिखा हुआ है? x के टर्म्स में. इसीलिए इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक होता है एक्सप्लिसिट, दूसरा होता है इम्प्लिसिट. अभी मैं इम्प्लिसिट नहीं बता रहा हूं, इम्प्लिसिट क्लास 12 में है. अभी हम एक्सप्लिसिट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है वहां पे वेरिएबल y क्लियरली
x के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस 1. ओके, द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल x बिकॉज देखो x का वैल्यू 3 x पे डिपेंडेंट है, y का वैल्यू 5 जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 7 कब है, जब x का वैल्यू 3 है. सो y इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल x. And at what rate is y moving? I mean, not y is moving. At what rate is y changing? Can you tell me at what rate is y changing? Y is changing by 2 units when x is changing by 1 unit. Just note down. When x is changing by 1 unit, y is changing by how many units? 2 units. So we can represent this whole thing in the form of differentiation, and we can write this as dy by dx equals to 2. Now what do you mean by dy by dx equals to 2? dy by dx equals to 2 का मतलब है कि जो y का वैल्यू है वो हर x का एक यूनिट चेंज होने के बाद y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, when the value of x changes by 1 unit, the value of y changing by how many units? 2 units. And that's why we can say that the rate of change of y with respect to x is how much? 2. इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं. Now अब ध्यान से एक बार देखना एक और एग्जांपल. सपोज एक मान लो, सपोज एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है, एक स्फेरिकल बलून है. लेट मी स्टार्ट विद अ रेडियस. सपोज एक सर्कल, नॉट बलून, अ सर्कल. सपोज एक सर्कल है ना, मान लो सर्कल का रेडियस सपोज 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 30 सेकेंड. मान लो 30 सेकेंड पे ये सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है. अब मान लो तुम सपोज हर 1 सेकेंड बाद, सुनना एक बार बात ध्यान से, हर 1 सेकेंड बाद इसका रेडियस 0.1 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है. मतलब अभी r है तो अब r प्लस 0.1 हो जाएगा. वापस 1 सेकेंड बाद r प्लस 0.1 मतलब वापस कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो हम लोग r प्लस 0.2. मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड बाद इसका रेडियस जो है 0.1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. So who can tell me in terms of differentiation how I am going to represent this whole information? Anyone who can tell me कि अगर मान लो स्टार्टिंग में इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है जब t सेकेंड टाइम था, हर 1 सेकेंड बाद इसका रेडियस 0.1 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहे हैं. इस पूरा चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन में कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हो तुम लोग? यस, dr. अभी जैसे यहाँ पे y चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तुम dr बोलोगे. किसके रेस्पेक्ट, y किस पे डिपेंडेंट था, x पे. यहाँ पे रेडियस किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे. तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखना होगा. व्हाट डू मीन बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब रेडियस इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बाय 2 सेंटीमीटर एवरी 1 सेकेंड. समझ में आया तो बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. The rate of change of radius with respect to time is 2 centimeter per second. Means what? Every 1 second, after every 1 second, I'm sorry, it was, I said 0.2, मैं यहाँ 2 लिख दिया. Okay, 0.1 बोला था क्या मैंने, ठीक है, 0.1, okay. मतलब जो बोला था वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. मैं गलती से ये चीज मैं भूल गया कि मैं क्या बोला था. सी, हर 1 सेकेंड बाद मान लो रेडियस 0.1 बढ़ते जा रहा है, तो फिर dr by dt क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड रेडियस, 1 सेकेंड टाइम चेंज हुआ, रेडियस 0.1 सेकेंड बढ़ गया, वापस दूसरा सेकेंड 0.1 बढ़ गया, वापस तीसरा सेकेंड वापस 0.1 बढ़ गया. तो हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0.1 सेंटीमीटर एवरी 1 सेकेंड. ओके एवरीवन, नेक्स्ट one more example I am taking, just note down. You know the best example in classroom which you have studied is acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. So acceleration क्या होता है? It is the rate of change of velocity. ठीक है? क्या होता है? Rate of change of velocity with respect to time. So this is acceleration. Is this clear everyone? उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम कॉमर्स के टर्म्स में बात करें, कॉमर्स साइंस ऐसे कुछ नहीं है वैसे, अगर हम बात करें भी, चलो कॉमर्स के टर्म्स में बात करें, क्योंकि अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट्स ने मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा नहीं है तो मैं उस पर आ नहीं रहा, बिकॉज देयर आर, आई थिंक इकोनॉमिक्स में अभी ये चीज डिस्कस नहीं हुआ है, तो अभी वो छोड़ देते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, एक बार सब कोई पहले इतना चीज कॉपी करो, जो भी मैंने अभी समझाया इसको एक बार कॉपी करो.
If radius of a circle changes by 0.1 centimeter every 1 second, हर 1 सेकेंड बाद 0.1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है. Everyone are listening. The rate of change होगा, rate of change of dependent variable. We are measuring change. We are not measuring the value, but we are measuring the change of that variable. Change कितना है? मैं y का वैल्यू 5 मेरे को नहीं चाहिए. y का वैल्यू 3 से 5 हुआ तो चेंज कितना हुआ? 2. 5 से 7 हुआ तो चेंज कितना हुआ? 2. वो मुझे चाहिए, चेंज चाहिए. हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं? चेंज. Everyone is copied. These are very very important things. Please everyone note down. देखो इसके बिना तुम लोग जब चीज करोगे ना तो वो आधा अधूरा लगेगा कि कर क्या रहे हैं. मतलब उतना क्लियर नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा मतलब टॉपिक में. वैसे हम इसका पूरा डिटेल जब 12 में जब जाओगे तो मैं बताऊंगा. अभी मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, बहुत कुछ मैं बताऊंगा जो कि जरूरत मतलब फायदा मतलब उससे तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. dy by dx का मतलब. Please hurry up. Now, suppose if I say that you have let's take you have a bucket, okay? You have a bucket. Now this bucket is to be filled with water, okay? और अगर मान लो इसके लिए मैंने टैप को ऑन किया, टैप ए को ऑन किया, और टैप ए जो है किस रेट से इसको भर रहा है, मतलब वाटर इसमें मतलब फ्लो रहा है इसमें. मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अगर मान लो ऐसा बोला गया है कि suppose the bucket is filled by a tap, okay, at the rate of 2 centimeter cube every 1 second. So who can tell me what is the meaning of 2 centimeter cube 1 second? Can you tell me यहाँ पे bucket में क्या change हो रहा है? अगर मान लो 2 centimeter cube 1 second, हर 1 second में उसमें पानी 2 centimeter cube भर जा रहा है, तो तुम क्या इस चीज को कैसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में? बताओ तो. Yes. How to represent it mathematically in terms of differentiation, in language of differentiation? Anyone? I can say that the rate of change of, yes, we can say that the rate of change of volume of this bucket with respect to time is 2 centimeter cube, not just 2 centimeter cube per second. ऐसे लिखना जरूरी है. मतलब हर 1 सेकेंड में इस बकेट का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है. तो मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है.
with respect to time and it is 2 centimeter cube per second. Suppose अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन ये है, सपोज ऐसा है कि एक सपोज हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, एक बाउल है जिसके अंदर पानी है बहुत सारा इसमें, और हम लोग उसको सनलाइट के अंदर रख दिए, ठीक है, मतलब बाहर रख दिए हम लोग, सन के पे हम लोग एक्सपोज करके रख दिए, सन के लिए, सनलाइट पे। अब एक बात बताओ, अगर मान लो हर एक सेकंड में ये अगर मान लो इसमें वॉल्यूम, इसमें वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं, सपोज 3 सेंटीमीटर क्यूब एवरी 1 सपोज सेकंड। Now how to represent this mathematically? Let me see who can tell me. Like volume is changing with respect to time, but what is the change here? Anyone who can explain me? Very good. Who is this? कौन है? Very good, Chetan. Absolutely correct. It is minus 3 centimeter cube per second. Okay, and Chetan worked hard. It's very correct answer. You have answered very correctly. It is the rate of change of volume. See, बात को ध्यान से सुनो. Water evaporate कर रहे हैं. Evaporate कर रहा है मतलब हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पहले जितना था अब तो कम होते जाएगा ना. तो चेंज क्या है? चेंज इज नेगेटिव. तुमको ये चीज समझना पड़ेगा. चेंज इज नेगेटिव. व्हाई चेंज नेगेटिव? क्योंकि उसका जो भी वॉल्यूम था हर एक सेकंड बाद ये वॉल्यूम इतना कम हो जा रहा है, इवेपोरेट कर रहा है मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगा, बिकॉज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नेगेटिव। इससे क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम उस बकेट, इस कंटेनर का वॉल्यूम घट रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार ये बस फॉर एग्जांपल लिखो, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ग्राफिकल पार्ट थोड़ा बहुत मैं स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा और बाकी पार्ट क्लास 12 अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं है, स्ट्रेट लाइंस में बताऊंगा। Now let's begin with the very simple questions, okay? Like we are going to apply the formula and we are going to use the properties to solve the questions of differentiation. Now listen here very carefully everyone. सबसे पहले तुम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ddx मींस आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसको डिफरेंशिएट करें उसका भी अगर बेस x होगा और पावर कोई भी रियल नंबर होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n into x to the power n minus 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग एनी फंक्शन whose base and with respect to, जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो और इसका बेस दोनों अगर सेम है तो क्या? फिर ये फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज n, where n represents any real value, it is n into x to the power n minus 1। Let us take few examples। पहले मैं सारा एक फॉर्मूला के अंदर मैं थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं जो क्लियर हो जाए। So we find that ddx of x to the power 5, let's take x to the power 5, तो यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, और n के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। So it is n x to the power n minus 1 and the answer is 5x to the power 4। All right, suppose you have ddx of x to the power 1, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन में वही सेम वेरिएबल बेस होगा, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? ये वाला, एंड द फॉर्मूला इज 1x to the power 1 minus 1। What is anything to the power 0? Anything to the power 0 is 1, and that's why x to the power 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? Now number 2, ddx of a to the power x। Now what is this? Just note down, यहाँ पे बेस x होगा, पावर कोई भी रियल नंबर होगा। यहाँ पे बेस रियल नंबर होगा और पावर क्या होगा? वेरिएबल, मतलब ये x है, ये भी x होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? लिसन हियर, इट विल बी a to the power x into log a, एंड द बेस ऑफ लॉगरिथम, जो मेरे पास स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था उनको पता है लॉगरिथम का मतलब, आई एम 100% श्योर, उसका बेस बाय डिफॉल्ट e होगा। यहाँ पे जो भी हम लॉग कर रहे हैं लॉगरिथम का बेस बाय डिफॉल्ट हमेशा e होगा, मतलब मैं अगर कुछ ना दूं मतलब क्या है? बेस e है। सो टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ 2 to the power x? It is 2 to the power x into log 2 base e। What is ddx of
5 to the power x. ddx of 5 to the power x is 5 to the power x into log 5 base e. What is ddx of e to the power x? ddx of e to the power x is e to the power x into log e. Now what is the base of logarithm if nothing is given? It is e. Check the formula everyone. एक logarithm का अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम होता है तो उस logarithm का आंसर क्या होता है? 1 होता है. बेस वैल्यू और बेस अगर दोनों सेम हो तो आंसर क्या होगा? 1. तो अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा? 1. सो व्हाट इज आंसर? इट इज e to the power x. सो इसीलिए याद रखना तुम लोग e to the power x का डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला है, नोट करो एक बार. फॉर्मूला नंबर 3. और क्या है बताओ तो? ddx of e to the power x, e to the power x. मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 ही अप्लाई कर रहे हैं. इट इज फॉर्मूला नंबर 2 only which we are applying and we are solving this, but we are getting e to the power x and we are using this as a formula. Okay, next. ddx of constant is 0. Why? Suppose you have a function y equals to, let's take 1 or let's take 1, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग. Now y equals to 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है. मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले तो फिर y का वैल्यू भी 1 ही होगा. x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट केस में 2 ले लेते हैं तो फिर y का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है x वाला. y इक्वल टू 1 है. 1 क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब जिसमें x ना हो. तो ये कांस्टेंट है. x का वैल्यू 1 लो तो भी y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 लो तो भी y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 लो तो भी y का वैल्यू 1. तो एक बात बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन x इज चेंजिंग बाय 1 यूनिट? यस, 0. We are finding that the rate of change of y with respect to x is 0. And what was y? Y was a constant function. So that's why ddx of constant is equals to 0. Constant का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. उसके बाद बाकी सब फॉर्मूला है, जैसे नंबर 5 ddx of log x. मैंने बताया था कि log का बेस कुछ ना हो मतलब वो e अज्यूम किया जाएगा. And ddx of log x is how much? 1 by x. All right everyone. तो इस तरह से अब हम लोग फॉर्मूला का समझ लिया हम लोगों ने. मतलब अब हम स्टार्ट करेंगे सम्स, जहां पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और ये सारा फॉर्मूला जो समझा है वो अप्लाई करेंगे. So now we are going to apply the algebra of differentiation. That is, these laws will guide us how to multiply. जब दो चीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस फॉर्म में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिवीजन फॉर्म में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सारा लॉज, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब प्रॉपर्टीज. इसको यूज करके हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे. सो वी हैव गॉट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कांस्टेंट इनटू fx. वी कैन कीप कांस्टेंट आउटसाइड and differentiate the function part. If you have ddx of several terms, अगर मान लो हमको differentiate करना है और बहुत सारा terms है, बहुत सारा, हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे terms को अलग अलग distribute कर सकते हैं हम लोग. ddx of an expression, ddx distributes over every term. मतलब हम लोग ddx of first term plus minus ddx of second term plus minus ddx of third term, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब ध्यान देना हम लोग एक सम देखते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज y इक्वल्स टू 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x 3 into 5 to the power x 6 cos x plus 3. Suppose this is a question and यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है. नाउ ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज हम बता दें. ddx of x is 1. हाउ? इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1. तो ddx of x to the power 1 क्या होगा? 1 into x to the power 1 minus 1. What is anything to the power 0? किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है. What is 1 into 1? It is 1. तो अब अभी जब भी देखो, इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग. जब भी ddx of x है, इतना स्टेप्स दिखाने का जरूरत नहीं है, ये 3 स्टेप्स दिखाने का जरूरत है. तुम डायरेक्ट क्या लिख देगा? ddx of x को डायरेक्ट 1 लिख देना. ठीक है, अब मैं इस सम को करके दिखाता हूं. देखना है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y. डिफरेंशिएट बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो, एक ही बात है. डिफरेंशिएट
एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस को डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। समझ में आया? तो बात डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। जैसे अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और, समझ में आया? तो अकाउंटेंसी और अकाउंट्स में फर्क क्या है बताओ तो, बता सकते हो तुम लोग? फिजिक्स और फिजिसिस्ट में फर्क क्या है? ओके बताओ तो, फिजिक्स और फिजिसिस्ट में फर्क क्या है? मतलब प्रोफेशनली जो पूरा फिजिक्स में अच्छे से वो पूरा कमांड कर चुका है और पूरा फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, वो फिजिसिस्ट हो गया। जैसे कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट का प्रोसेस को, डिफरेंशिएट मतलब रेट ऑफ चेंज, तो ये रेट ऑफ चेंज का प्रोसेस जो है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्योंकि आज मैंने एक बैच में, जब मैंने ग्रुप में भेजा था आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत लोग मुझे बोला था डेरिवेटिव हम लोग नहीं करेंगे, तो डेरिवेटिव इज सेम एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, डेरिवेटिव इज अ मींस रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। So we have ddx of y. Y is an expression having many terms. So if you have an expression having many terms, distribute and differentiate it separately. सबको distribute कर दो और अलग अलग differentiate कर दो. That is ddx of 6x cube minus ddx of 5x square plus ddx of 8x plus ddx of 3 into 5 to the power x plus ddx of 6 cos x plus ddx of 3. Now there is a property that suppose if you have any constant multiplied with a variable, constant into variable, c को बाहर रखो and variable को differentiate करना, constant को बाहर रखना, variable को differentiate करना। 3 बाहर, ddx of 5 to the power x, 6 constant है बाहर, ddx of cos x, and if you have only constant, ddx of constant is 0. constant का differentiation 0 क्यों होता है मैंने वो भी बताया। What is ddx of x to the power 3? इसमें हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला? n x to the power n minus 1, that is 3 minus 1 is 2. What is ddx of x square? Formula number 1, that is n x to the power n minus 1. What is ddx of x to the power 1? Formula number 1, but मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, क्यों? मैंने समझाया था तुम लोगों को। What is ddx of 5 to the power x? Which formula number? Yes, it is 5 to the power x into log 5 base e. अगर मैं ना दूं बेस तो गलत है, नहीं, तभी भी e ही हुआ। log में कुछ बेस ना दे मतलब e है वो। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y, differentiation of y with respect to x. So ddx of y is dy by dx. Directly you can write down. So the answer is 18x square 10x plus 8, 3 into 5 to the power x log 5 minus 6 sin x. After copying this sum, if you have any doubt, you can ask. If you don't have doubt, do the next sum जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। Do this sum. Do number 2 and number 3, both these questions.
बता दो। Check once and let me know like if you all have any doubt. किसी को भी अगर कोई डाउट है तो बोलो एक बार. ओके, 3 कांस्टेंट है बाहर, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया. 2 कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x. 6 कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ log x इज 1 by x. tan x का sec square x. 6 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. किसी के लिए किसी को बताना है कि नंबर 2 कोई है ऐसा जिसके लिए मुझे पूरा सोल्यूशन करना है, सिर्फ आंसर नहीं? एनीवन? नंबर 2 का पूरा अगर सोल्यूशन मुझे बताना है तो बोलो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नहीं लग रहा किसी का डाउट है. तो नंबर 3 ट्राई करो एक बार. ओके, आंसर सॉल्विंग. जस्ट अ मिनट, एक बार सबको पहले मैं टाइम देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ. See, in question number 3, पहले मैं बता दूं कि you all don't have any such formula to differentiate 1 by x to the power n. Do you have any formula? Check once. No. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारा x को, जहां x दिख रहा है ना तुम लोग को, सबको इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, न्यूमरेटर में, x टू द पावर n के फॉर्म में. तो क्या करेंगे हम, x स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x टू द पावर -2. Is this clear? This is laws of indices. This is not differentiation. In order to make differentiation simple, possible, and 1 by x square को क्या लिखा है, x to the power -2. Because you all know that 1 by x to the power plus n is x to the power minus n. All right. 4 by x ये भी differentiate नहीं हो सकता इस फॉर्म में. तो x के पावर पे कुछ नहीं, मतलब 1, इसको हम x to the power -1 लिख सकते हैं. उसके बाद रूट x को x to the power 1 by 2 लिख सकते हैं, बिकॉज रूट हटेगा तो उसके पावर पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा. जैसे क्यूब रूट अगर हटेगा तो इसके पावर पे क्या आ जाएगा, 1 by 3. रूट हटेगा तो पावर में हाफ आ जाएगा. nth रूट ऑफ x अगर होगा तो x to the power 1 by n. तो वैसे ही रूट x को x to the power हाफ लिख सकते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट कर दें. Now y is an expression having 1, 2, 3, 4 terms. So हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे. अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ. तो ये हो गया 3/2 ddx ऑफ x टू द पावर -2, -4 कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ x टू द पावर -1. 7 कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ x टू द पावर हाफ plus ddx of 8. ddx of y is dy by dx. Formula is x to the power n का n. क्या चीज,
Yes. Is it so? Like, check once, everyone. वही मेरा यहाँ तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं मेरा कनेक्शन तो बढ़िया है, मतलब मैं नेटवर्क तो एकदम ddx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. ddx of x to the power minus 1 is minus 1 x to the power minus 1 minus 1. What is ddx of x to the power half? It is half x to the power half minus 1. But ddx of constant is 0. You can simplify this and write this as dy by dx equals to plus into minus is minus. 2 gets cancelled. X to the power minus 3. Minus minus plus 4 1 ja 4 x to the power minus 2. Minus 7 by 2 x to the power. What is half minus 1? Take LCM and find out it is minus half. This is the answer. If you have any doubt, you can discuss, you can ask. If you don't have, try the next sum which I am giving on the board. क्या बताओ? यहाँ तो u इंटू वी में, अच्छा एक बात बताओ फिर, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? मुझे एक बात बताओ तुम. गुड दैट यू आर डिस्कसिंग, नो प्रॉब्लम, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो. प्रॉपर्टी नंबर 1 फिर क्या है बताओ एक बार मुझे. प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब तो कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू एफएक्स हुआ ना, तो पूरा 3/2 तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर रख दो ना और फिर इसको डिफरेंशिएट करो. समझ में? अब जस्ट अगर अगर मान लो तुम बोल रहे, लिसन हियर, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं. अगर तुम सपोज ये बोलो कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर में मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 मतलब रूल नंबर 3 क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, ध्यान से सबको देखना, देखो सबको एक बार देखना. ये बोल रहा है कि आप ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं डाउट है, एक बार क्लियर कर लेना फिर भी सबको, जो भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लो. मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट है तो बाहर रखो, वो बोल रहा है कि यूवी रूल अप्लाई कर लेते हैं. गलत नहीं है, देखो ध्यान से कैसे. मैं इसको यू ले लेता हूं और इसको वी. यूवी का मतलब क्या हुआ? दो चीज का प्रोडक्ट. मैंने ये तो नहीं बताया ना कि दोनों वेरिएबल ही होना चाहिए. तो लेट्स अप्लाई यूवी रूल. द फॉर्मूला इज u ddx of v plus v ddx of u. Now tell me what is ddx of constant? ddx of 2 is how much? 0. तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0. आखिर में क्या बच रहा है देखो तो एक बार, यही बच रहा है कि नहीं जो हम लोग ने सोचा था यहाँ पे कि कांस्टेंट इनटू एफएक्स. इट इज बेटर व्हाट, इट इज एडवाइज not to apply UV rule and waste your time, because you are wasting your time by one line. Instead of doing that, you can keep that constant outside by applying property number 1 and differentiate the variable part. When to apply UV rule? Now the question is when to apply it. When both u and v is function of x. When both u and v are variable, at that time we apply UV rule. I hope I have made myself clear. Copy down fast and do sum number 4.
गुड। सबसे पहला चीज इसमें मुझे ब्रेक करके सारा टर्म्स को x टू द पावर n के फॉर्म में लाना है। तो जिन लोगों को डाउट है यहाँ पे एक बार बोर्ड पे देख लो। सो वी हैव 5x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट अगर हटेगा तो इसके पावर पे 1/3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा देखना एक बार, इस टोटल फ्रैक्शन को मैं ब्रेक करूंगा डिनोमिनेटर से, मतलब स्प्लिट कर दूंगा मैं। तो ये क्या हो जाएगा 5x क्यूब बाई x टू द पावर 1/3 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 What is x to the power m divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. We are not differentiating. We are trying to express in such a form that differentiation becomes easy. Sorry, it's 3. I'm sorry. See everyone, I made mistake here one. एक mistake मैंने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1/3 मैं गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, ये 3 होगा। ये मत कंफ्यूज होना कि 5 minus 1/3 ऐसा होता नहीं, वो गलती से मैंने लिखा है, ठीक है। 3 3 9 minus 1 is 8 8/3 5/3 2/3 and now you differentiate. Now you start the process of differentiation. And what is differentiation? Measuring the rate of change of y with respect to change in the value of x. So this is dy by dx, copy it up. Now I'll teach you u into v rule. So let's start now u into v rule. आज मैं u into v rule बता के आज इतनी क्लास खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट डे u by v rule और chain rule दोनों एक साथ हो जाएगा।
Everyone has copied? Everyone? Now let us see u into v rule. So just now I said you that when you are applying u into v rule, make sure that both is a variable. And then what we do, we keep one function outside and differentiate the other function. अब एक बार जिसको differentiate किया था उसको बाहर रखो और u को differentiate करो, ठीक है? तुम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, पहले ये फिर ये, because addition is commutative. A plus b is same as b plus a. Let us take one example. We have 3x to the power 5 into log x. And suppose हम लोग को यहाँ पे dy by dx निकालना. Now don't say that इसको differentiate करने के लिए जैसे अगर बीच में प्लस होता तो सारा को अलग अलग differentiate कर देते हैं. इनटू है तो क्यों नहीं 3 का differentiation फिर x to the power 5 का फिर log x का, ऐसा नहीं होता है. Because मैंने बोला कि differentiation में जो differentiation का जो rules होता है वो अलग है, algebra अलग होता है, algebra अलग है. See, algebra chapter अलग है, लेकिन यहाँ पे algebra of differentiation apply करें, मतलब properties of differentiation apply करें. तब अगर मान लो दो या दो से ज्यादा चीज का प्रोडक्ट हो तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते. ये प्लस रूल है, प्लस माइनस रूल है, जहाँ पे हम लोग सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता. तो हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, 3 is a constant, keep it outside. डी डी एक्स of y is dy by dx. Let us consider one function as u and the other function as v, and let us apply this formula, which is u into differentiation of v plus v into differentiation of u. डी डी एक्स of log x is how much? 1 by x. Don't get confused कि यहाँ पे e नहीं दिया हुआ है. e नहीं दिया मतलब वो e ही है, बेस कुछ नहीं दिया मतलब वो e है. And डी डी एक्स of log x is 1 by x. डी डी एक्स of x to the power 5, formula number 1, which is 5x to the power 5 minus 1. And so dy by dx is 3, x का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, 4x to the power 4. मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो. कॉमन क्या है, x to the power 4. This is the answer. Okay everyone, after completing this sum, everyone will do sum number, the next sum which I am giving. Everyone do 5e to the power x tan x. Okay. So we find that the answer is, okay, let me first give time.
एक बार कॉल कर लो पहले। Done. Everyone is done, I think. Now see, the answer is 5 constant है बाहर. Formula is u ddx of v. I'm writing directly v ddx of u. All right, everyone. This is the answer. And what you can do is you can take e to the power x common. This is the answer. Okay. नहीं माइनस नहीं है, सिर्फ tan x है. सो दिस मच इज आई मीन यूवी रूल. और ये आज मैंने बेसिक्स कराया, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट आज मैं होमवर्क देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग u बाई v रूल करेंगे, और उसके साथ साथ